Okay, so question 4 is saying each figure given below shows a pair of adjacent angle AOB and BOC. It means that in each figure we are having two angles angle AOB, this one, as well as angle BOC, this one. These two angles we are having. Now question is asking you, find whether or not the exterior arms OA and OC are in the same line or not. तो हमें ये बताना है कि whether AO or OC are at the same line or they are on the different line, means we have to tell whether AO and OC, or if I directly say, then I will say that AC is a straight line or not. Actually, in this question or in these questions, in all these parts of this question, we have to tell whether AC is a straight line or it is a curved line. So there is only one rule. There is only one rule. Keep this rule in your mind, that a line is a straight line only if the angle forming by it is 180 degree. I'm repeating it again. A line is straight only if it is forming an angle of 180 degree. एक लाइन स्ट्रेट लाइन तभी होगी जब वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी. If a line is making 180 degree angle, it means it is a straight line. If it is making any other angle other than 180, so it is not a straight line. Is it clear? If it is clear, then say yes, sir, and I'll move further. Okay. So students, now we have to check whether this line is making 180 degree angle or not. और इसे कैसे check करेंगे? It is very simple. Just add the green angle and the red angle. Means add angle AOB plus angle BOC. इन दोनों angle को हमें add करना है. And then we will check whether the answer is 180 or not. So you will write AOB is 90 minus X plus BOC is 90 plus X. So beta plus X minus X cancel, 90, 90, 180. So as you can see, the sum of these two angles is 180 degree. So we can say AOC is a straight line. Fine. So is it simple? Now second question. Again check angle AOB plus BOC. Check whether they are the sum of these two angle is 180 degree or not. So you will add 97 plus 83. So what is the sum? Again 180. So it is also 180 degree. AOC is a straight line. Now question 3, add angle AOB plus BOC. AOB is 112 and BOC is 88. Now add them. It is 200. Good morning. So 200 is the sum of these two angles. So can we say that CO is a straight line? Yeah, AC is not a straight line. Fine, because the angle formed by it is 200 degree. So it is not a straight line. Is it clear? So this was question 4, now question 5.
a line segment AP stands at point P of a straight line BC. This question is saying there is a straight line, this is the straight line, and this is BC, and there is a line segment on it which is perpendicular. Perpendicular means at 90 degree. This is the line. Okay, so this is perpendicular, and this line is AP. This is A. This point is P. Now read the question again. A line segment AP, एक line है AP जो stand कर रही है P point पर BC line पर, perpendicular. Okay. No, sorry, perpendicular नहीं है. I'm so sorry. यहाँ पे perpendicular की जो sorry यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि perpendicular है. So I'm going to make it again. So this is your line BC, and AP stands at point P on the straight line BC such that APB is okay. So यहाँ पर एक line है जो perpendicular नहीं है, किसी angle पर है. Okay. So let me make it. This is the line AP. This is point A, and this is point P. And the question is saying APB, angle APB. This is APB angle, this one. This is 5x minus 40 degree. Okay. This is 5x minus 40. And APC, this one, this angle. And this is x plus 10. Find the value of x and angle APB. What is APB? And we have to find the. So the question is saying BC is a straight line. BC is a straight line. It is given in the question. So if BC is a straight line, तो angle formed by it will be 180 degrees. So we can say angle APB and angle APC, इन दोनों एंगल का जो सम होगा that should be 180 degree. क्यों? क्योंकि BC is a straight line. सीधी सी बात है. तो इन दोनों एंगल का सम should be 180. Now APB is 5x minus 40 plus this is x plus 10 is equal to 180. So 5x plus x is 6x minus 40 plus 10 is minus 30 is equal to 180. Minus 30 को shift करो उधर तो 6x is equal to 180 plus 30. So 6x is equal to 210. X is equal to 210 upon 6. Okay. So you can reduce it by 3. 3 2s are 6. 3 7s are 21. 2 1s are 2, 35. तो x is equal to 35. एक तो ये आंसर आपका x की वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन, x आ चुका है. Then you have to find angle APB. Angle APB is equal to APB was 5x minus 40. X की value put करो 5 into 35 minus 40. What will be the value? Calculate the answer and tell me the value of APB fast. 5 into 35 minus 40. कौन करेगा जल्दी से? $135. Very good, Ali and Rukaiya. So APB is the answer. So the value of x is 35 and angle APB is 135. So students, this was exercise 25A. I hope ये आपको समझ में आई होगी. Now we will start exercise 25B. Question 1. Question 1 says identify the pair of angles in each of the figure given below. Means adjacent angle, vertically opposite angle, interior alternate angle, corresponding angles, interior alternate angles. So angle 2 and angle 4. Before starting this, let me tell you a concept of all these. देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही यूनिक
एंड अ वेरी न्यू थिंग जो अभी आपने नहीं पढ़ी होगी वो मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। फाइन। अब आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट तो मैंने बता दिया, अभी 2-3 दिन पहले बताया है, इसको फिर से बताएंगे। देन सेकेंड, व्हाट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज corresponding, what is alternate interior angles, then what is corresponding angles. If you will not understand it properly तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझना है। देखो, these are two lines, okay, this is one line and this is another line, and this is line AB, this is line BC, CD, let's say CD, and these two lines are parallel to each other. Parallel, I have already told you, parallel means like the tracks of rail, means इनके बीच की distance कभी भी different नहीं होगी, हमेशा same होगी। तो these are two parallel lines, समझते हुए चलना। अब एक थर्ड लाइन इन दोनों को कट कर रही है। फाइन। इस ये जो लाइन कट करी है इसका नाम है MN। तो इस MN लाइन को पहली चीज तो ये है कि ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। Fine. MN is a transverse line. So what is transverse line? Transverse line which cuts two parallel lines. एक ऐसी लाइन जो टू पैरेलल लाइंस को कट करती है इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लाइन। बट ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट टू एक्सप्लेन यू वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यहाँ पे कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे और कितने होंगे, कितने पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, एक एंगल अगर आप इसको पकड़ के चलोगे तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है। फाइन। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 10 डिग्री है तो दिस विल ऑल्सो बी 10 डिग्री। अभी जितना समझा रहे हैं सिर्फ उतना समझो, ठीक है, ध्यान से। नाउ अगर इस एंगल की हम बात करेंगे तो ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, ये वाले एंगल के। फाइन। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। So these two angles are equal to each other. If this is 120 degree, so this will also be 120 degree. तो कितने पेयर हो गए? आप पेयर गिनते रहो, काउंट करते रहो। अभी मैंने कितने पेयर बताए हैं? बताओ कितने पेयर बताए? हाउ मेनी पेयर्स आई हैव टोल्ड सो फार? 2 पेयर्स। वेरी गुड तलहा, वेरी गुड। इसी तरह की कंसंट्रेशन चाहिए। 2 पेयर्स मैंने बताए हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस एंगल तो इट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। अभी सिर्फ वर्टिकली अपोजिट की बात कर रहे हैं, अभी किसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो दीज टू आर इक्वल। इफ दिस इज 30 डिग्री तो दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। ये वर्टिकली अपोजिट है। ये 3 पेयर हो गए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस एंगल, दिस वन, so this will be equal to this one. So if this is let's say 130 degree, so it will also be 130 degree. So how many pairs of vertically opposite angle total? टोटल कितने पेयर्स हो गए बेटा? 4 पेयर्स हो गए। ओके, सो इस फिगर में कितने पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है? 4 पेयर्स।
4 pairs means 8 angles. Okay, तो ये बात हो गई वर्टिकली अपोजिट की। तो अभी अगर मैं आपसे कहूं कि इस फिगर में कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो आप कहोगे 4 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इफ आई आस्क यू कि विच एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू विच एंगल, इफ आई आस्क यू कि ये एंगल, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एन, लेट से ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं एक नेम दे देता हूं, ये पॉइंट पी है, एन पी बी, एंगल एन पी बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? ये पॉइंट लेट से कि ये ओ पॉइंट है, तो एन पी बी का वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? अब मुझे कौन आंसर देगा? एंगल एन पी बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल। नो लवीजा, ए पी बी नहीं है, ए पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन। एन ए सी भी नहीं है, एन ए सी, सारा एन ए सी कैसे जा रही हो भाई? ये एन है, ये ए है, ये सी है, तो एन ए सी जब आप बोलोगे तो ये एन ए सी ये ऐसे चला जाएगा, जबकि ऐसा तो कोई लाइन ही नहीं यहाँ पे ड्रॉ की गई है, तो एन ई सी तो होगा नहीं। ए ओ पी, ए ओ पी, अब ए से ओ जाओगे, देखो आपने उसको इरेज करवा दिया, वेरी गुड, अब मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। वेट वेट वेट, इतने सारे अभी आंसर्स हैं, सबके डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, सो या आई वाज ए पी डी, ए पी डी, ए पी डी, ए पी ओ, yes, APO is the right answer. Ferris is saying NPB, बेटा APO is the right answer। देखो APO right answer कैसे होगा? ए से पहले आप ए पे गए, फिर पी पे गए, फिर ओ पे गए, इट मींस ये वाला एंगल, यही तो इसके वर्टिकली अपोजिट होगा ना। तो इस एंगल, इसका मतलब ये है कि अभी आप लोग एंगल्स को कैसे लिखा जाएगा वो अभी समझ ही नहीं रहे हो। अभी आपको ये नहीं पता है, जो कि बेसिक थिंग है ज्योमेट्री की, अभी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि एक एंगल जिसको आपको लिख के बताना है कि सर ये वाला एंगल होगा, आपको भले पता होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, बट यू आर नॉट एबल टू राइट दैट एंगल। आप उस एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो कि इसे किन लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ बच्चे तो सिर्फ 2 ही लेटर्स यूज कर रहे हैं, जबकि एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लेटर्स का यूज करते हैं। और जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना है उस वो जो लेटर है वो बीच में मिडिल में होना चाहिए। यहाँ पे इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पी मिडिल में होगा, ए पी ओ, तो दिस इज एंगल ए पी ओ। तो हम कहेंगे एंगल एन पी बी वर्टिकली अपोजिट है एंगल ए पी ओ के। अब हमें लग रहा है ये आज हमें इसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ये एक्सरसाइज तो अभी हम कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, अभी इसी पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसका आंसर कौन सही करेगा। ये मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसपे मैंने रेड से ड्रॉ किया है। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये एंगल है सी ओ पी, एंगल सी ओ पी, ये किसके वर्टिकली अपोजिट है? हु इज रितेश बाय द वे? हु इज रितेश इन द क्लास? Who is Ritesh in the class? Okay. Thank you for reminding me. असल में when I pause it तो I forget to resume it. तो आप resume मुझे याद दिला दिया, that is good. Thank you, Sara. So this is corresponding to this one. लेफ्ट का लेफ्ट के साथ करस्पॉन्डिंग होगा, राइट का राइट के साथ करस्पॉन्डिंग होगा। फाइन, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से देखो।
Okay, so look at this now again. This angle is equal to this angle, and these are called corresponding angles. If this is 120 degree, so this will also be 120 degree. Yeah, and if I talk about this angle, so this will be corresponding to this angle. These two angles are equal to each other. If this is 30 degrees, so this will also be 30 degree. Is it clear? So how many pairs of corresponding angles are there? How many pairs of corresponding angles are there? Tell me. 2. But actually there are 4. तो बाकी के 2 पेयर कहां पर हैं वो भी देख लो. Now look at this. This angle is corresponding to this angle. This is the third pair. If this is 15 degrees, so this will also be 15 degree. Okay. So this is the third pair. And this angle is corresponding to this angle. If this is, let's say, 130 degrees, so this will also be 130 degree. Fine, students. So overall, we can say, there are 4 pairs. Fine. So shall I put the question? अब मैं कुछ questions आपसे पूछूंगा, ठीक है? अब देखिए उसका आंसर कौन करता है सही. So I am drawing an angle. This is angle APO. This is angle APO. Okay. Now can you tell me कि ये एंगल किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा? इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होगा इसके, वो कौन सा है? वेरी गुड. सारा 2 लेटर से नहीं लिखेंगे. एनपीबी. एनपीबी फेरिस. एनपीबी आप इस एंगल की बात कर रहे हो. एनपीबी ये तो वर्टिकली अपोजिट है ना. ये इक्वल तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी से होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्टिकली अपोजिट, आई एम टॉकिंग अबाउट करस्पॉन्डिंग. देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं इतना टाइम इस एक्सरसाइज पे इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि मेरा क्या है, अभी मैं 25 भी आपको एक के बाद एक सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्यूशन करके मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपके कुछ समझ में नहीं आएगा बिकॉज दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू. इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं सो दैट आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए. और अगर आप फिर भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर भी आंसर नहीं करोगे, कुछ बच्चे ही आंसर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आई वॉन्ट ईच एंड एवरीवन टू इन्वॉल्व. इतने सारे बच्चे हैं लेकिन ओनली सम आर गिविंग द आंसर्स. इट डजेंट मैटर, आंसर रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम आंसर करो. ठीक है, आंसर करोगे तो यू विल डू प्रैक्टिस. वेरी गुड जैन, योर आंसर इज करेक्ट. वेरी गुड. यूसुफ, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. अर्पण करेक्ट. करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा. देखो दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल विच इज इक्वल टू दैट वन. सो इसका अब नेम क्या है? इसका नेम है COM. एंगल COM ये करस्पॉन्डिंग होगा COM के. वेरी गुड. तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना अभी जब मैं करवा रहा हूं, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे. फिर आप कभी नहीं सीख पाओगे इस चीज को अगर अभी नहीं सीखोगे. और ये सिर्फ क्लास 6 में नहीं है, 7th 8th 9th इवन इन हाई स्कूल ऑल्सो.
अब मैंने येलो से जिस एंगल को मार्क किया है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये है आपका एंगल एन पी बी। एंगल एन पी बी किस एंगल के इक्वल होगा? अजीमा, टेल मी द आंसर एवरीवन। एनपीबी। बहुत से बच्चे पीओडी आंसर कर रहे हैं, पीओडी। तो देखिए इनका आंसर सही है या गलत है। सो देखो पीओडी, पीओडी तो बेटा ये एंगल है। ओहो भाई फिर से। ओके, सो पीओडी, अगर आप पीओडी देखो, पी ओ एन डी, तो पीओडी तो ये एंगल है ना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे। यस, एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर। एपीबी, एपीबी अजीमा, ए पीबी तो एक स्ट्रेट लाइन है, एपीबी तो कोई एंगल ही नहीं है। वो अगर एंगल है भी तो 180 डिग्री का है। एपीबी तो राइट आंसर कैसे हो सकता है? वो तो पूरा 180 डिग्री बन जाएगा ना, क्योंकि एपीबी इज अ स्ट्रेट लाइन। पहले पहले एंगल्स, यानी आप पॉइंट्स को देखो तो फिगर में पॉइंट्स कहां से कहां पे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज वर्टिकली अपोजिट और अल्टरनेट तक ही रखते हैं, और फिर कल हम आपको अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर आई विल टीच यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये एंगल किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा? इसका करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल कौन सा है? दिस वन, दिस इज एंगल ए पी एन। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बताइए मुझे। तलहा, व्हाई आर यू नॉट गिविंग द आंसर? वेरी गुड रुकैया, आजम, जतिन, रुकैया सी ओ एम, रुकैया सी ओ एम, सी ओ एम ये एंगल है, और ये एंगल उसके करस्पॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, ये जो है ये इस वाले के करस्पॉन्डिंग है जो आपने बोला। बट मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग दिस वन। सो सी ओ एम इज नॉट द राइट आंसर। सी ओ एन, कुछ लोग कह रहे हैं सी ओ एन, तो सी ओ एन राइट आंसर हो सकता है, लेकिन एन तक क्यों जा रहे हो आप? सी ओ पी तक जाओ सिर्फ। सी ओ पी ये इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। सो दिस इज equal to that one. If this is 120, let's say, so this is also 120. And what is the name of this angle? It is angle POC भी लिख सकते हो, इसे COP भी लिख सकते हो। This is the right answer. Okay, so this is all for today. I hope vertically opposite and corresponding angles आपके समझ में आ गए होंगे। There are 4 pairs of vertically opposite. There are 4 pairs of corresponding angles. And tomorrow we will discuss alternate exterior and alternate interior. Then we will start exercise 25B, question 1. Okay, उसके बिना तो I'm not going to teach